Today we will discuss about calculation of national income by product method. In previous class we have done income method as well as expenditure method to calculate national income individually. Now today I am starting production method. It is also known as value added method of calculating national income. Why it is known as value added method of calculating national income? Because in this method we take only final goods value or value created by each producing units, and adding them we find out national income. Formula used here generally gives us what we get. It gives us GDP-MP, that is gross domestic product at market price. What is the formula says? Formula says that value of output minus intermediate consumption is your GDP-MP. Value of output. Value of output means minus intermediate consumption. Okay. Now intermediate consumption we are deducting here in order to find out how much value addition has been done by each production units. We take only value created in production unit and producing goods. Okay, so value of output, how we will calculate that? We will calculate it by adding change in stock to sales. Sales plus change in stock is your value of output. Now how sales gets, ये sales तो आपको पता होगी, you must have done in maths also, basic math में profit and loss जब निकालते हैं तो sale calculate करनी होती है. तो how you will do? We take quantity into price per unit, इन दोनों को multiply कर देते हैं. For example, if I have sold 2000 units at rupees 10 rupees each unit, तो 2000 into 10 कितना हो जाएगा? 20,000 rupees की सेल हुई है. ओके. Now how you will calculate change in stock? Change in stock you have studied in class 11th also, that is closing stock minus opening stock. लास्ट डे के स्टॉक से प्रीवियस फर्स्ट डे के स्टॉक को माइनस करते हैं. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज योर चेंज इन स्टॉक. तो दिस इज द वे टू गेट व्हाट? दिस इज अ वे टू गेट योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फाइन. दिस इज द वे टू गेट व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. क्या फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, where value of output is sales plus change in stock. Sales is quantity into price per unit. Change in stock कैसे निकालते हैं? Closing minus opening stock. These are the formulas you have to keep in mind. Fine. National income क्या होती है? You all know that national income is NNP at factor cost. और हमको यहाँ पे दिया क्या है? GDP-MP मिलता है इसके फॉर्मूले से. ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन व्हेन वी डू वी गेट व्हाट? वी गेट GDP-MP. नाउ GDP-MP को अगर हम कन्वर्ट करेंगे NNP-FC में, तो जी को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू नेट. तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लेस करेंगे. डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमें नेशनल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा. देन व्हाट वी विल डू? NFIA ऐड करेंगे. मार्केट प्राइस को वी विल कन्वर्ट इनटू फैक्टर कॉस्ट. तो व्हाट वी विल डू? नेट को माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे. देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू NNP-FC, जो आपकी क्या होती है? नेशनल इनकम होती है. ठीक है. अब व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक in order to calculate national income using this method. Okay, just see. Second hand goods are never considered in any of the methods. Same here, we don't consider second hand goods here also. Self consumption of production made by producing units is included in your national income. Yes, why not? If I am not selling it, then I am using it for my self consumption. तो what's the issue? Production तो हुआ, तो वी विल ऐड इट हेयर. अगर आज हम अपने गुड्स को नहीं प्रोड्यूस करके सेल्फ कंज्यूम कर रहे थे, तो हम दूसरे का खरीद के सेल्फ कंज्यूम कर रहे होते. तो it's like holding air from directly or indirectly, right? So self consumption will be considered and will not be ignored while calculating national income in this method also. Intermediate goods are ignored.
intermediate goods are ignored. Why so? Because if we will take intermediate goods at every production units while their production, then it will lead to double counting as well as multiple counting also. Will give you an example. Suppose farmer has produced wheat of rupees 100, and that 100 rupees wheat has been sold to whom? To your फ्लोर मिल. तो 100 रुपीज़ फार्मर क्रिएटेड फाइनल गुड. फिर फ्लोर मिल ने उसको अगर सपोज प्रोड्यूस उसको वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया एंड 20 रुपीज़ मोर ऐड करके सेल करा एट रुपीज़ 120, तो 120 उनकी फाइनल प्रोडक्ट हो गई. तो 100 प्लस 120 कितना हो गया? 220 हो गया. एंड लेटर ऑल दिस फ्लोर हैज़ बीन यूज्ड बाय द बेकर टू प्रोड्यूस ब्रेड्स और केक्स. तो क्या हो गया? उसने वो केक और ब्रेड्स बेचे 150 रुपीज़ पे. तो आपका टोटल अगर आप ऐड करते चले जाओगे, प्रोडक्शन 1 phase, that is farmer, 100 rupees. Production at phase 2, that is in the flour mill, 120 rupees. Production at phase 3, that is at bakery, that is your 150. तो 150 प्लस 120 प्लस 100 कितना हो गया? 370 रुपीज़ हो गया. तो 100 रुपये की चीज़ में वैल्यू एडिशन होते होते फाइनली इट हैज़ बीन सोल्ड टू 370. बट क्या ये एक्चुअल है? इट इज़ थर्ड टाइम काउंटिंग हो गई है डबल. 100 रुपये का वीट, फिर 100 रुपये वो वही फ्लोर में, फिर 100 रुपये आपका यहाँ पर. तो डबल ट्रिपल काउंटिंग हो गई, विच इज़ नॉट गुड एंड विच विल नॉट शो द करेक्ट पिक्चर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इन द कंट्री. हैंस वी विल टेक ओनली what value addition done by each unit. सपोज फार्मर में हमने 100 रुपीज़ का वीट लिया, वही 100 रुपीज़ का वीट जब फ्लोर मिल में जाके वैल्यू एडिशन हुआ तो 100 हम माइनस कर देंगे एज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो 120 का अगर वो सेल कर रहा है तो 120 माइनस 100, दैट मीन्स 20 ही वैल्यू एडिशन हुआ. तो 100 एट फेज़ 1 प्लस 20 एट फेज़ 2. एंड 150 पे अगर ब्रेड सेल हो रही है तो 150 माइनस उनका इनपुट कितना था? 120. बेकरी में 120 का इनपुट लिया था, कहाँ से? फ्लोर मिल से, और 150 पे बेचा. तो उनकी वैल्यू ऑफ आउटपुट 150 थी और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 120 था. उसको भी डिफरेंस निकाल लिया. कितना आया? 150 माइनस 120, 30. तो फेज़ 3 में कितना हुआ? 30 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ. तो 30 एट फेज़ 3 प्लस 20 एट फेज़ 2 एंड 100 एट फेज़ 1. तो 100 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 30, टोटल कितना हो गया? 150 रुपीज़. तो दिस विल हेल्प टू अवॉइड डबल काउंटिंग. यानी कि हम डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए क्या ले सकते हैं? ओनली वैल्यू क्रिएशन लेना चाहिए. इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देना चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड. कमीशन ऑन सेकेंड हैंड गुड्स के सेल पे जो कमीशन बनता है वो तो फर्स्ट टाइम बन रहा है ना, दैट इज़ अ सर्विसेज रेंडर्ड. तो हेंस इट विल बी इंक्लूडेड, इट विल नॉट बी एक्सक्लूडेड, इट विल बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. नाउ डबल काउंटिंग कैसे होती है दैट वी अंडरस्टूड. हाउ वी विल इग्नोर डबल काउंटिंग, वी विल गो थ्रू दिस नाउ. इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, जो कई बार सेम प्रोडक्ट को 3-4 बार, जैसे जैसे वो अलग अलग फेज़ को प्रोडक्शन को क्रॉस करते जा रहे हैं, हम 3-4 बार काउंट कर दे रहे हैं. तो उसको इग्नोर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और रियल पिक्चर ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री दिखाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, ईदर टेक फाइनल आउटपुट और टेक वैल्यू एडेड addition, not method. Don't go for method, take only value addition done at each phase of production. Like फार्मर ने वैल्यू एडिशन किया 100 रुपीज़ का. आपका जो है सेकेंड फेज़ में क्या हुआ? सेकेंड फेज़ में जब वो फ्लोर मिल में वही 100 रुपीज़ का वीट गया तो वहाँ पे उसने फाइनल प्रोडक्ट बनाया 120 रुपीज़ का, उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया. तो 120 माइनस 100, 20 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन वहाँ पे हुआ. फिर वही फ्लोर जब बेकरी में गया और ब्रेड्स एंड केक्स में कन्वर्ट हुआ तो 150 के उसके ब्रेड्स एंड केक्स सेल हुए. तो और उसका इनपुट कितना था? 120 रुपीज़ का फ्लोर ख़रीदा था उसने मिल से. तो 150 माइनस 120, 30 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन उसने किया. तो तीनों फेजेस के प्रोडक्शन स्टेजेस के हमने क्या करे? 100 प्लस 20 प्लस 30 तीनों को ऐड कर दिया. तो दैट विल बी योर वैल्यू एडिशन मेथड. और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ले लेंगे कि वो 100 रुपये का वीट
इनका फाइनल प्रोडक्ट तो था लेकिन अगले का इंटरमीडिएट बना, तो यहाँ यू विल नॉट ऐड। फिर फ्लोर मिल में उसका फाइनल प्रोडक्ट तो था बट वो आगे और प्रोसेस हुआ, देयर ऑल्सो यू विल नॉट ऐड एट स्टेज 2। स्टेज 3 में जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बना ऑफ 150 रुपीज़, तो वो आपने 150 रुपीज़ ले लिए। तो या तो फाइनल आउटपुट मेथड ले लो या वैल्यू एड मेथड ले लो, लेकिन इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कंसिडर किया तो यू विल गेट मिसलीडिंग national income and not the true picture of national income, as well as there will be double counting. Okay, so this was the concept and we will go further for numericals of this method. Today I am ending up here only. Thank you class.